Hello to each and every one of you, and I welcome you to Steven Sir Makes It Easy. And like is my objective and aim is in the next maybe I presume around an hour to come, whatever is the question that is being catered to, that is being explained specifically CBSE HSC level not for profit organization, वो आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और सिंपल कर देगा. Okay, before I get started with my duty for the day, a very quick reminder. You can please connect yourself with us besides the YouTube platform on Facebook, Instagram, as well as the Twitter handle. I'll do my best that besides the teaching, that is this one-to-one thing, I am also, I get a bit more active on those platforms also. Also, very importantly, the Telegram channel which is given above me, do join this particular Telegram channel so that many benefits out of that. One, regular updates about all the lectures for all the different standards, for all the different subjects which are explained on this channel. Steven Sir Makes It Easy is updated. Also, at the end of every chapter, the PDF of the entire chapter, which will have the question and the solution, will be shared on the Telegram platform given above. If you do intend to purchase the textbook from which the explanation is being done, the link for the purchase is being provided in the description below. If you have missed out the previous lecture, a card for that is being provided at the top corner. You can always click it, watch the missed out lecture. Right now, let me get started. So, we've been doing accounting for not-for-profit organization and अपना ज्ञान, अपना knowledge ये chapter में थोड़ा तो बढ़ ही गया है, मतलब उतना तो मैं confident हूँ ही. हाँ. Today, there are a few old things that I will teach in a different look. What do I mean by that? Multiple times आपने ये notice किया होगा, you may have noticed what? That subscription is one item that has got various adjustments. Each is connected to last year's subscription, next year's subscription. What do you do? Subscription is an income. How do you find out the correct subscription? You have been told, well, most probably by me at the beginning of this particular chapter, that you should be doing accrual method. What is accrual method? कि एक ही साल का इनकम आपको लिखना है, एक साल का. Don't mix in that last year का इनकम पुराना वाला, next year का इनकम एडवांस वाला. Don't mix. Even though members do that, members don't mix. Members आके कभी पुराना इनकम देते हैं, कभी नेक्स्ट ईयर का इनकम देते हैं. हमको सिर्फ करंट ईयर के कमाई पे ध्यान देना है, so that you can find out the current year's subscription. Today I am giving you a formula. किधर है? ये मेरे ऊपर है, इनफैक्ट मेरे पीछे भी है. ओके, सो सब्सक्रिप्शन मैंने पहले से लिख के रखा है, and there is a formula below it, RTNL. इंडिया में रहते हो ना तो सुना ज़रूर होगा. क्या? MTNL, BSNL, they are telecom operating companies, government companies that are run by the government of India. हाँ, unfortunately not doing very well, but उनके नाम से ही प्रेरित ओके हमने ये फॉर्मूला लिखा है, RTNL. Now obviously there is a full form for it which is right in front of that. R means what? Receivable for current year. So it is subscription of the current year. आप क्या करोगे? करंट ईयर का है तो प्लस करूंगा. हाँ, तो वो फॉर्मूला में लिखा है प्लस. दिस ईयर्स रिसीव लास्ट ईयर. नाउ है तो दिस ईयर का ना, मीनिंग करंट ईयर. दिस विल टेक लिटिल टाइम फॉर इट टू अपीयर इन अ प्रॉब्लम. व्हेन इट डज, क्या है, मैंने तैयारी करके रख दिया कि अगर वो आएगा तो उसको भी प्लस करेगी. नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन या लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन,
करंट ईयर का नहीं है तो माइनस. ओके, सो द फॉर्मूला इज RTNL. इन एनी प्रॉब्लम व्हेन यू सी सब्सक्रिप्शन, माय रिक्वेस्ट, माय सजेशन, माय एडवाइस, जो आपको समझना है समझ लो. ओके, कि RTNL लिख के रखो. आई डिडंट इवन रीड द क्वेश्चन टुडे, बट मैंने पहले लिख के रख दिया. ये क्या है? ALLA. दिस विल हेल्प यू गिव द सेकेंड इफेक्ट. ओके, व्हाट डज A मीन? एसेट. L mean liability. So I repeat, whatever you write in RTNL, okay, I'm not pointing at you, I'm pointing at those things above me. They will have a second effect, either on the asset side or liability side. So when you write that formula above, it will help you in two things. One, should you plus or minus? Two, should you write on the asset side or liability side? In today's problem, the problem is in two items. एक तो सब्सक्रिप्शन है जो ऊपर है और एक लॉकर रेंट. नाउ आई रिपीट माई सेल्फ. तो ये बीच में क्या है सर, ये गैप क्यों है? देयर आर अदर इनकम्स दैट विल कम ना. लॉकर रेंट जो लाइन में आया वहां पे मैंने वापस से RTNL लिख दिया. लॉकर रेंट इज एन इनकम. बच्चे लोग, मेंबर्स लोग लॉकर यूज करके उसका भाड़ा हमको देते हैं, बट कभी कोई पेंडिंग भाड़ा देता है. समवन पेज मी इन एडवांस. ओके, सो अ सेम फॉर्मूला लाइक अबाउ. फॉर सब्सक्रिप्शन आई रोट अ फॉर्मूला RTNL. आई रोट दैट सेम फॉर्मूला फॉर लॉकर रेंट, बिकॉज इन दिस सम इट विल ऑल्सो बी यूजफुल फॉर लॉकर रेंट. तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारी तरफ से, प्रैक्टिस. एंड आई रिपीट, there is ALLA meaning asset, liability, asset. Okay, besides this, printing and stationery consumed ढूंढना है. Very important, you should know. क्या ये consume का मतलब क्या है? तुमने यूज कितना किया. If you buy a thumbs up, a Pepsi, a Coca-Cola, मैं तो बोलूँगा खरीदो ही मत, बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल ड्रिंक्स. बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. अगर आपने वो खरीदा, सो क्या उतना आप कंज्यूम करोगे? डिपेंड करता है. अगर प्यास लगी होगी तो मैं भी पूरा बॉटल गड़क लिया, और आधा पिया और आधा बोला मैं बाद में घर पे लेके जाता हूँ, बाद में पी लूँगा. हाँ, तो खरीदा पूरा बॉटल, पिया आधा, तो वो कंज्यूम्ड है. तो उसी तरह ओके, कंज्यूम्ड इज व्हाट इज योर खर्चा. कंज्यूम्ड इज योर खर्चा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मीन्स बुक्स, रूलर, पेन, पेंसिल. ओके, ऑफिसेस, बिग ऑफिसेस, they buy in bulk. You may buy one notebook, one file for a project, but then if you ever ask an office which is a part of a company, do you buy one notebook? They will say no. We buy in bulk. We buy 500 notebooks. We buy 1000 files because we require those many. They buy, they purchase, but they don't use those many together. They use a part of it. That is called as consume. To find, how do I find? Printing and stationery consume. Simple, which we have done 2-3 lectures back. It looked a little different. So you have to do opening stock of stationery right plus purchase. That will give you total available for use. Okay, what do I mean by that? If you had in the morning 10 rupees, that is your opening stock of money, barabar. Your papa gave you 20 more. So total available for use is how much? 10 plus 20, 30. That is what is the meaning here, total available for use. From that, what you don't use is called as closing stock. तो closing stock को minus करना है. And the answer after that will give you consumed. Okay, so before you get started, before I get started of even reading the question, if you are solving this with me later, play pause करके एक फॉर्मूला RTNL प्लीज लिखना सब्सक्रिप्शन के लिए, this one,
एक फॉर्मूला लॉकर रेंट। इफ यू आर कंफ्यूज सर बीच में कितना लाइन रखना है, आप मत रखो बीच में लाइन, लॉकर रेंट को ऊपर लिख लो, बाकी की चीजें नीचे लिख लेगी, नो प्रॉब्लम। एक तो ये तैयारी करना, एंड ऑल्सो वी रिक्वायर द बैलेंस शीट ना, तो आज मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है सो दैट इट इज अ बिट मोर एलैबोरेट, थोड़ा और नीटली मैं लिख सकूं। ओके, सो बिहाइंड मी इज द ओपनिंग बैलेंस शीट, अबाउ मी इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ, डेट क्या है? वेल, द क्लोजिंग डेट इज 31st March 17, सो द ओपनिंग हैज टू बी 16। हाँ, तो ये यहाँ पे लिखा है ना 31st March 16 और 1st April 16, दैट इज द वन एंड द सेम, लास्ट ईयर का लास्ट डे या करंट ईयर का फर्स्ट डे। ओके, एंड एट द वेरी बॉटम, ओके, let me get out from here. Now it is clear. There is a last year 15-16, there is a current year for which you are solving accounts 16-17, and there is a future tense next year 17-18. Please everybody remember, you are not आप अकाउंट्स, ये जो सम सॉल्व कर रही हो ये 3 साल का नहीं होता, कभी नहीं होता, एक ही साल का होता है। कौन सा साल? करंट ईयर। हाँ, तो हम लोग सॉल्व कर रहे 16-17, बट इसके अंदर कभी कभी आ जाता है, क्या आ जाता है? पिछले साल की कहानी, आने वाले साल की कहानी, तो वो कहानी को हमको क्या करना है? फिल्टर आउट करना है, एंड वी ओनली वांट करंट ईयर की जानकारी। ओके, दैट्स व्हाट इज आवर जॉब, हमारा काम तो वही है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारा मसाला आता है, हमको लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का मसाला निकाल देना है। राइट नाउ क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बोलने में ही मेरा 10 मिनट चला गया। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब, तो आपको लिखना है फर्स्ट पेज के ऊपर, इन द बुक्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब फॉर द पीरियड April 1, 16 to 31 March 17, मतलब एक साल। Now what is given? Now this is not the only question, question इसके बाद भी है। Okay, so I do repeat, question next page पे जाने वाला है, इधर लिखा है PTO, please turn over, which you know। कैश बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। मेंबर सब्सक्रिप्शन 122,500, ये टोटल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये गड़बड़ वाला टोटल है। इन दिस जो सब्सक्रिप्शन है उसमें लास्ट ईयर भी है, करंट ईयर भी है, नेक्स्ट ईयर भी है। आप लोग देख सकते हो, वेयर एम आई पॉइंटिंग, नॉट दिस पॉइंटिंग, दैट कर्सर। हाँ, सो टू हैंडल दिस टुडे वी हैव रिटन अ फॉर्मूला बाय द नेम ऑफ RTNL, sale of furniture। for the last I think 3 lectures, I think so, हम लोग सेल ऑफ एसेट करें, माइनस करते हैं, बट हम लोग बुक वैल्यू माइनस करते हैं, आज भी वही करेंगे। लेगेसीज, इट इज डिफरेंट इन एवरी प्रॉब्लम। लास्ट टाइम को लेगेसी जो था वो कैपिटलाइज हुआ बिकॉज इट वॉज अ स्पेशल लेगेसी, टुडे इट इज नॉट, इट इज जनरल। तो क्या करने का? देन इट इज अ सादा नॉर्मल लेगेसी, स्पेशल नहीं है, तो इसको कैपिटलाइज मत करो, ये नॉर्मल इनकम है, इनकम, क्योंकि जनरल कहा। सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ओके, ये बुक्स नहीं है, बुक्स एसेट होता है, पीरियोडिकल्स एंड जैसे मैगजीन्स होते हैं, ओके, एंड न्यूज़पेपर ये तो रद्दी हो जाता है, बेचेगा तो हमको कुछ पैसा मिल जाता है, इनकम। देन हायर ऑफ ग्राउंड, भाड़े पे दिया ग्राउंड शादी के लिए, शादी किसी की हुई, हमने कुछ कमा लिया, इनकम। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट। हाउ? ये नॉर्मल डोनेशन नहीं है, दिस डोनेशन की गाड़ी स्पोर्ट्स फंड के पिटारे में जाना चाहिए। स्पोर्ट्स फंड किधर आता है? कोई भी टाइप का फंड लाइबिलिटी में आता है। ओके, सो इन सम टाइम आई विल शो यू कि ये हमको लाइबिलिटी में लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट लॉकर रेंट। हाँ, तो एक RTNL हमने सब्सक्रिप्शन के लिए डिसाइड किया, एक RTNL हमने लॉकर रेंट के लिए। हाँ,
सैलरी एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, टेलीफोन बिल एक्सपेंस है, सब्सक्रिप्शन अगेन बट फॉर पीरियोडिकल्स. होल्ड ऑन सर, इफ यू आर कंफ्यूज सर, दोनों साइड पे सब्सक्रिप्शन है. हाँ, वन इज सब्सक्रिप्शन यू रिसीव, वो मेंबर्स से आता है, वो इनकम है. वन इज सब्सक्रिप्शन यू पे फॉर पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स जो हर हफ्ते, एवरी 10 days, 10 days में तो नहीं, चलो एवरी फोर्थ नाइट, 14 days में आता है. ओके, सो इट्स अ खर्चा. सो सब्सक्रिप्शन जो मेरा कर्सर ऊपर पॉइंट कर रहा है हैज़ नथिंग टू डू विथ द लेफ्ट साइड वाला सब्सक्रिप्शन. ओके, तो ये एक्सपेंस है ऊपर जो दिया है. हाँ, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मीन्स व्हाट? इट मीन्स परचेस, बिकॉज पेमेंट साइड पे तो परचेस ही आएगा. हाँ, सो वी हैव रिटन अ फॉर्मूला फॉर दैट, तो उसके परचेस में वी विल राइट दिस. स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ये जो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है ये स्पोर्ट्स फंड से होगा? वेयर इज द फंड? आई थिंक लास्ट टाइम वी हैड टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. आई होप यू रिमेंबर दैट. इफ नॉट, वो जो था ना कार्ड, आई कार्ड अबाउ, वो क्लिक करके चले जाओ. सो यू विल on the channel, I will do my best that there is continuity maintained. The next sum is not absolutely different from what was done previously. There will be a rishta between today's problem and the one done last time. हाँ, तो ये स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स फंड से निकलेंगे. अब स्पोर्ट्स फंड अब तक आया नहीं, आने वाला है. सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, वो सेक्रेटरी फ्री का काम करता है, विच इज़ वेरी बैड व्हेन आई से फ्री का. ही इज़ अ बिग मैन, वो चाहे तो ये काम नहीं करेगा, बट ही वॉन्ट्स टू डू सर्विस. तो जब किसी तरह की मीटिंग होती है, वी कॉल हिम ऑन स्टेज एंड वी गिव हिम दिस ऑनरेरियम कि सर वी वांट टू ऑनर यू, सो वी कैन गिव यू लैक्स ऑफ रुपीज. तो सर ये हम लोग थोड़ा कुछ दे रहे एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, खर्चा. 8% इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है, बट तारीख देख लो, 31/3/2017 मीन्स ये March 31, 2017 लास्ट डे. अगेन मेरा डायलॉग वही है. क्या तुझे याद है पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने क्या किया है इन्वेस्टमेंट का? अगर आप इन्वेस्टमेंट 3 महीने के लिए करो, 6 महीने के लिए करो, 9 मंथ्स के लिए करो, 10 मंथ्स के लिए करो, यू अर्न द राइट फॉर इंटरेस्ट. But then it has to be for 6 months, 3 months, 9 months, 10 months. This is not even for a day. Last day पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, डोंट एक्सपेक्ट इंटरेस्ट, नहीं मिलेगा. हाँ, ओके. सो जस्ट बता रहा था मैं, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. कैश एंड बैंक, वो क्लोजिंग एसेट में आ जाएगा. पॉइंट 1, द क्लब हैड 225 members, each paying an annual subscription of 500. So in the current year, entertainment club, okay, so people come, how many? 225 people, and everybody pays from their pocket 500 500 500. हाँ, तो सब लोग देंगे तो कितना मिलना चाहिए? क्या हमें उतना मिला? अब वो सब डिपेंड करता है when I actually teach you, well, which I'll do during the lecture today, but specifically the item of subscription. Okay, right now just behind me, okay, sorry, I'll move out, that's a better way to explain this to you. Subscription outstanding, please look at the cursor. As on 31st March 16, ये पुराना है, ये लास्ट ईयर का है. कितना है? 15,000. इसका मतलब क्या है? well, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर में आपको कुछ मेंबर्स ने मिलके 15,000 नहीं दिया था. ये रिसीवेबल है, ये वाला रिसीवेबल है. किधर आएगा? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में. एंड लेटर ऑन, जस्ट टू टेल यू एंड टू कीप यू अवेयर कि 15,000 आना था, आया कितना लास्ट ईयर का? ऊपर इफ यू सी 12,500. हाँ, तो मतलब मैक्सिमम लोग ने बिल क्लियर किया, 1-2 लोग ने अभी तक दिया नहीं. तो ये 15,000 विल कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट. ऊपर का कैश एंड बैंक विल कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट. टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग
फॉर द ईयर 16-17, नॉट पुराना, 16-17 इज द करंट ईयर। तो टेलीफोन बिल में आई विल लीव वन लाइन, आई रिपीट, टेलीफोन बिल में आई विल लीव, वी विल लीव वन लाइन। लॉकर रेंट 3050 आउटस्टैंडिंग, लॉकर रेंट इज एन इनकम, आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल, बट कौन सा ईयर देखो 15-16, वो तो लास्ट ईयर है। हाँ, जैसे सब्सक्रिप्शन तुमको मिलना था 15,000 लास्ट ईयर का, सिमिलरली इवन लॉकर रेंट यू हैव टू गेट 3050 ऑफ लास्ट ईयर। देयरफॉर हम लोगों ने दोनों के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए देयर इज अ फॉर्मूला RTNL एंड ऑल्सो फॉर लॉकर रेंट RTNL। देन दे से एंड 1500 फॉर 16-17, तो लास्ट ईयर का भी लॉकर रेंट पेंडिंग है, करंट ईयर का भी लॉकर रेंट पेंडिंग है, सो वी हैव रिटन दैट फॉर्मूला। सैलरी आउटस्टैंडिंग, बट लुक एट द ईयर 16-17, करंट ईयर, लीव वन लाइन फॉर सैलरी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ, वी हैव पुट अ फॉर्मूला फॉर दैट रीजन, बिकॉज ऑफ दिस कि there is opening stock, and if you read ahead, closing stock of printing. See, opening stock will come in the opening balance sheet, closing stock will come in the closing balance sheet. On 1st April 16, this is the first day. The other balances were, अच्छा, तो first day मतलब in the opening balance sheet ये लिखना है, क्या क्या लिखना है, furniture, building, asset, sports fund, very important, sports fund, स्पोर्ट्स जब होगे उसमें खर्चा होगा, उसको संभालने के लिए देयर इज अ फंड, लाइबिलिटी साइड, ओके, फंड। पॉइंट 7 विच इज द लास्ट पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग एट 12.5%, so on furniture I'll calculate 12.5% on building, assuming that it is on reducing balance for the year ending 31st March 2017. Definitely you will ask me, sir, what is reducing balance? My dear, there are two methods of depreciation जो आपको I think last year पढ़ाया. One is original cost method. If your machine is 1 lakh, after 10,000 depreciation it becomes 90,000. Further 10,000 depreciation it becomes 80,000. So 90,000, 80,000 is the reducing balance and 1 lakh is the original cost. If you calculate on 1 lakh in the first year, second year, third year, fourth year, you are following original cost method. But if you calculate on 1 lakh first, then you calculate depreciation on 90,000, then you calculate on 80, that is reducing balance. Now very simply put, आप लोग ये चैप्टर में रिड्यूसिंग बैलेंस ही करते हो, तो ये जो उन्होंने दिया ना एंड रिड्यूसिंग बैलेंस पे करना, अरे हम लोग हमेशा वही करते हैं, हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट नहीं फॉलो करते, तो टेंशन मत लो, उससे थोड़ी घबराहट होती है कि सर क्या बोल दिया ऊपर, कुछ अलग नहीं बोला, आप जैसे डिप्रिसिएशन नॉर्मली करते हो वैसे ही करो। ओके, दैट्स इट। इवेंचुअली it took me 30 minutes to explain to you the question. Prepare income and expenditure account and balance sheet. Did the past 30 minutes be a waste? Absolutely not. Absolutely not. Okay, you can reading the question is a big part of the plan to solve the solution, a major part of the plan. अगर मैं आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँ, if you ask soldiers, जिन लोग बॉर्डर पे ओके लड़ते हैं अगर ज़रूरी पड़ा तो, if they have a mission, ओके, तो do they बिना a plan, बिना knowing के उस एरिया जहां पर हम जाने वाले हैं उसका मैप क्या है, क्या उन लोग, हाँ मैं सोल्जर हूं भारतीय सेना का, ओके, मैं बिना प्लान के जाके आक्रमण करूंगा? बिल्कुल नहीं। उन लोग आपको बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता, सर प्लान होता है, और सर प्लान में बहुत टाइम जाता है।
वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान में बहुत टाइम जाता है, मे बी प्लान में 2-3 दिन चले गए, बट जब अटैक किया 15 मिनट में अटैक खत्म, मिशन accomplished. Planning takes days because you have to be ready to know आने क्या वाला है. And well, I'm just comparing that to reading a question कि बाबा you have to know आने क्या वाला है. तो spend time, at least एग्जाम में बात नहीं कर रहा मैं, but when you're trying to solve a problem, okay, the question deserves time and you have to read and analyze it. Step 1 क्या करें, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें क्या लिखे, वो देखो ना, ऊपर कैश है, बैंक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, अगले पेज में लॉकर रेंट है, उसके बाद में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स फंड, ये सब मिक्स करके हमको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देना है. तो चलो भाई शुरू करो हमारे साथ. हाँ, तो मैं अभी 1-2 मिनट के लिए यहाँ से निकल जाता हूँ सो दैट इट इज विजिबल टू यू. फर्स्ट, कैश 27,500, बैंक 60,000, लास्ट ईयर का पुराना सब्सक्रिप्शन 15,000, लास्ट ईयर का पुराना लॉकर रेंट 3,050. This is all given in the question. Point number 1 में सब्सक्रिप्शन, पॉइंट नंबर 3 आई थिंक सो उसके अंदर में लॉकर रेंट, देन पॉइंट नंबर 4 और 5 के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंड देन आफ्टर दैट फर्नीचर एंड आई थिंक बिल्डिंग. स्पोर्ट्स फंड इज अ लाइबिलिटी. एनी फंड, टूर्नामेंट फंड, कंप्यूटर फंड, बिल्डिंग फंड, इट्स अ लाइबिलिटी. उसको कहते हैं स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड. नाउ क्वेश्चन मैं ऑडियो में ही कंटिन्यू कर रहा हूं. क्यों बनाया, अरे टैली कर लो, कैपिटल फंड आ जाएगा. ओके, तो एसेट साइड पहले मैं टोटल कर लेता हूं, 8,57,550. आफ्टर माइनसिंग, subtracting 15,000, I get 8,42,550. We call it as capital fund. So I repeat, थोड़ी नहीं, बहुत प्लानिंग के बाद में हमको ये क्या आया है, ओके, कैपिटल फंड आया है. तो ये पूरी मेहनत हमने की. अब स्टेप 2 करेंगे. ये पूरा बैलेंस शीट जो मेरे लेफ्ट राइट में है ऊपर जाएगा, बट विथ होने वाले एडजस्टमेंट्स. तो फर्नीचर लिखूंगा तो उसमें सेल है, डेप्रीसिएशन है, बिल्डिंग में डेप्रीसिएशन है. तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये पुराना हिसाब है, ये क्लियर हो जाएगा. ये लॉकर रेंट जो है ना, वो भी पुराना हिसाब है, क्लियर हो जाएगा. यू हैव टू लीव वन लाइन, लीव वन लाइन. ये जो स्पोर्ट्स फंड है ना, इसमें से खर्चा होने वाला है, तो इधर भी नॉट वन लाइन, इसमें खर्चा भी होने वाला है, इसके लिए डोनेशन भी आया है. तो काफ़ी लंबी रामायण है. ओके, तो इसमें तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ये स्पोर्ट्स फंड के अंदर 3 लाइन्स आई विल लीव. सो लेट्स ट्रांसफर ऑल ऑफ दिस टू द बैलेंस शीट अबाउ. तो चलो जी शुरू करते हैं. ओके, पहले कैपिटल फंड ऊपर, लीव अराउंड 4 लाइन्स, 8,42,550. स्पोर्ट्स फंड 15,000, लीव 4 लाइन्स, क्योंकि उसके नीचे डोनेशन का बखेड़ा है, एक्सपेंसेस है. एसेट साइड, कैश बाद में क्लोजिंग, बैंक बाद में क्लोजिंग. सो यू डोंट कॉपी द ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग अलग वैल्यू होता है. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पुराना वाला. ओके, जब भी एक पिक्चर खत्म हो बट उसमें कहानी अधूरी रह जाए, एंड देयर इज अ पार्ट 2, देयर इज अ पार्ट 2, तो जब पार्ट 2 रिलीज होगा, इट विल ऑलवेज रिमाइंड यू व्हाट, डू यू रिमेंबर पार्ट 1 में कहानी अधूरी थी, अभी हम लोग उसको पूरी करेंगे, उसको हम क्लियर करेंगे. ओके, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अरे
सबसे बड़ा सवाल, सेंचुरी का सबसे बड़ा सवाल अगले पार्ट में क्लियर हो गया। हाँ, तो उसी तरह ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो पुराना है, एंड लॉकर रेंट भी वैसे ये क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये वाला ओपनिंग स्टॉक, ओके, वो मैं स्क्रीन के बाहर चले जाता हूँ ना, वो दिखता नहीं है, इधर नहीं आएगा, ऊपर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक कुठे जाणार, यू रिमेंबर वी हैव अ फॉर्मूला, ऊपर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, उधर लिखो 2000, आई रिपीट इन दी फॉर्मूला अबाउ। नेक्स्ट इज फर्नीचर, वो भी ऊपर चला जाएगा, लीव अराउंड 3 लाइन्स एंड बिल्डिंग 6,50,000, 1 लाइन क्योंकि एक डिप्रीसिएशन है, ओनली 1। देखो 2 स्टेप हो गए, पहला ये बैलेंस शीट ओपनिंग बना लिया, दूसरा यही बैलेंस शीट ऊपर ट्रांसफर कर लिया, ओके, ऊपर। फिर तीसरा क्या है, अरे अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। दैट इज वन ऑफ द more complicated and longer parts of this solution. Subscription कितना है, टोटल लिख हमेशा 122,500, ओके, धीमे धीमे, जल्दी नहीं है, ओके। सो ऊपर फर्स्ट लाइन आई हैव रिटन देयर, ऑलवेज राइट द टोटल 1,22,500। इज दिस सब्सक्रिप्शन करेक्ट? नो, इसमें बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इन दिस द क्वेश्चन सेज कि लास्ट ईयर का 12,500 मिला है, सम मेंबर्स हैव पेड 12,500 for the last year. Should I write it? No, because it is last year. Do you see the formula? Not here, not here. Okay, I'll shift. हाँ, अभी मैं बोल सकता हूँ, मेरे ऊपर आपको फॉर्मूला दिखता है, उसमें लास्ट ईयर है, वो लास्ट ईयर के लाइन में यू फिट 12,500. हाउ यू राइट इट? What did you do? You subtracted it. क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है, इसके लिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सेकेंड इफेक्ट क्या है? देखो उधर एक कोड वर्ड लिखा है ALLA, एसेट साइड। तो इट सेज कि आप एसेट साइड पे जाओ और आपको दिखेगा ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 15,000, उसके अंदर 12,500 आपको मिल गया, तो उतना आप क्लियर करो ना, उतना बिल आप क्लियर करो। रिसीव्ड कस्टमर से, कस्टमर नहीं मेंबर से मिल गया, हाँ, तो स्टिल रिसीवेबल इज 2,500. सो यू रिमाइंडेड सम मेंबर्स, यू रिमाइंडेड ऑल द मेंबर्स, उसमें से मैक्सिमम लोग ने आके पैसा देके हिसाब क्लियर किया। ओके, ये तो था लास्ट ईयर का। उसके बाद द क्वेश्चन सेज दैट द करंट ईयर के लिए आपको कितना मिला है? 1 लाख। प्लीज लुक अबाउ 16-17। क्या करने का उसके लिए? कुछ नहीं, एवरीबडी कुछ नहीं। क्यों? वेल ये करंट ईयर है, करंट ईयर में मेंबर्स करंट ईयर का तो पैसा देंगे ना, उसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं। हाँ, तो टच मी नॉट, उसको हाथ मत लगाओ। नेक्स्ट ईयर का कितना मिला? 10,000। अच्छा, तो वो इफ यू नोटिस द फॉर्मूला हैज अ लाइन कॉल्ड एज नेक्स्ट ईयर। प्लीज लुक अबाउ। ओके, वो भी माइनस है। माइनस क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है, अगले साल का पैसा है। ओके, तो उसमें लिखा -10,000। एंड इफ यू लुक एट द कोड वर्ड इट सेज L. व्हाट इज L? L, डोंट से सर लूजर, नो नो नो, डोंट, ऐसा नहीं बोलने का। ओके, L मीन्स लाइबिलिटी। सो दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल का एडवांस में मिला आपको, तो ये लाइबिलिटी साइड पे जाता है कुछ इस तरह, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर और इन एडवांस 10,000. So whatever you write in R, T, N, L, it has a second effect, A, L, L, A, तो वो हेल्प आउट करता है। ओके, इतना किया, सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया। देन सेल ऑफ फर्नीचर, इसमें भी देर इज अ बखेड़ा, आई हैव टू माइनस बुक वैल्यू, गो टू द बैलेंस शीट, minus sale of furniture, but the book value, cost price,
8,000. So now I have 92,000. Hey, but I sold it for 10,000. Hey, congratulations. क्यों? Well, 8,000 का चीज़ तुम 10,000 में बेचेगा तो तुमको प्रॉफिट हुआ है ना? यस यस, पीठ थपथपाओ. ओके, आप अच्छे सेल्समैन हो, आपने 2,000 का प्रॉफिट किया है. So that's exactly what I'm writing about. So I repeat, last 2 or 3 lectures, okay, every lecture we have sold an asset and every time कभी खुशी कभी गम, मतलब कभी प्रॉफिट कभी नुकसान. ओके, तो चलो फर्नीचर भी बिक गया. इसके बाद लेगेसीज, जनरल. अच्छा, सिर्फ लेगेसी होता तो कैपिटलाइज हो जाता, बट जनरल मतलब इनकम है, तो इनकम साइड पे लिख देते हैं लेगेसीज. 1 लाख, लेगेसीज 1 लाख. सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स, रद्दी 3,200, मतलब स्क्रैप. थोड़ा डिसेंट भाषा में बोलूं तो स्क्रैप. सो अबाउ 3,200. 3,200. Hire of ground used for marriage. It doesn't matter what is it used for, if it's engagement, birthday party, product launch. हमने तो पैसे कमाए, इनकम. हमने पैसे कमाए, इनकम. 48,750. Donation, but hold on, this is not normal donation, it is for sports fund. कितना है? 25,000. So you do have sports fund. किधर रिलायबिलिटी में है? कितना है? 15,000. तो क्या किया? अभी किसी ने डोनेशन दिया, वो स्पोर्ट्समैन है, वो बोलना चाहिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा दो, तो वो बोल के गया कि स्पोर्ट्स के लिए ही ये यूज करना मेरा डोनेशन. तो हम लोग स्पोर्ट्स फंड में इसको डिपॉजिट करते हैं, मतलब ऐड. So my total sports fund is 40,000. My total sports fund is 40,000. So it is not a normal donation, okay? It is a special donation. तो जिस कार्य के लिए हमको दिया गया, उस कार्य में हमने उसको जमा कर लिया. नेक्स्ट, लॉकर रेंट. हाँ, तो 17,050. तो लॉकर रेंट है ना आपके पास, ये मेरे पीछे ही आएगा. तो ये लॉकर रेंट रिसीव्ड की फर्स्ट लाइन में लिख लो. हियर सी अबव, फर्स्ट लाइन. And then later on when we read the adjustments of locker rent, then we will see R, T, N, L, where can we fit it. Next, payment, salaries 24,000. Expense, if it's simple, I'll not waste your time, I'll not waste my time. 24,000. Entertainment expense 81,000. Entertainment expense. सैलरी में आउटस्टैंडिंग का, हाँ, सो आई हैव लेफ्ट 1 लाइन. नेक्स्ट, टेलीफोन बिल 35,000. इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, आई लीव 1 लाइन, 1 एडजस्टमेंट. 35,000. Whenever there is something which is a little different, it requires some time to be explained, so obviously I'll slow down and I'll explain it to you. Subscription for periodicals, this is not कमाई वाला सब्सक्रिप्शन, दिस इज खर्चा वाला सब्सक्रिप्शन. तो खर्चे वाले साइड पे आ जाएगा, बिकॉज अगर मैगजीन, स्पोर्ट्स मैगजीन अगर घर तक आना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना. हाँ, सो सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स 14,500. नेक्स्ट, व्हाट इज इट? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. क्या है उसका? परचेज, क्योंकि पेमेंट साइड पे है. कितना आपने खरीदा? 13,000. जो खरीदते हैं वो कंज्यूम नहीं करते हैं, सो वी आर एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर कंज्यूम कितना किया. इफ वी राइट इट इन दैट फॉर्मूला अबाउ, एट द एंड वी विल कम टू नो दैट. सो ओपनिंग में वी हैड 2,000, नाउ वी हैव परचेज 13,000, सो द टोटल अवेलेबल फॉर यूज इज 15,000. नाउ डिड आई यूज 15,000? वो डिपेंड करता है, थोड़ा रुक जाओ, वो डिपेंड करता है, वी हैव टू चेक इट आउट. Next,
स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ओके, समथिंग वेरी डिफरेंट। ये कहाँ से होगा? सी, स्पोर्ट्स फंड है, उसमें 40,000 है। आपने कितना स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस पे किया? 50,000। किधर है? देखो ना, ऊपर है ना, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000। सो द क्वेश्चन, फ्रॉम 40,000 जो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के लिए स्पोर्ट्स फंड में रखा है, हाउ डू आई पे 50,000? आई अंडरस्टैंड फ्रॉम 40, 50 cannot be deducted, but from 40 can at least 40 be deducted? Yes. तो I repeat, 40 फंड, 40 खर्चा। ये जो लास्ट का बच गया ना, ठेंगा नहीं, 10,000 एक्स्ट्रा, वो बाद में सोचेंगे। तो आप एक काम करो, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस जितनी अपनी व्हाट यू कॉल कैपेबिलिटी है, मतलब स्पोर्ट्स फंड में 40,000 है ऊपर, उसमें से 40,000 एक्सपेंस निकाल लो, तो वो वाला स्पोर्ट्स फंड पूरा खत्म, जीरो। बट व्हाट अबाउट दी 10,000 एक्स्ट्रा? 40,000 तो यहां से निकल गया, ओके। 10,000 का क्या? देखो, उसके लिए द स्पोर्ट्स फंड का पिटारा कम था, तो वो आपका नॉर्मल खर्चा है, और वो जो नॉर्मल खर्चे आते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर साइड, 10,000. So if you have a fund, पहले उस फंड से खर्चे को निकालो। आई रिपीट, पहले उस फंड से खर्चे को निकालो। इफ 10 people are going to watch a movie and एक दोस्त को 10 लोग कहते हैं ये मेरा 500 रुपया है, रख, इसमें से जो पिक्चर का खर्चा निकलेगा, टिकट का, व्हाट यू कॉल, पॉपकॉर्न का, आप निकाल लेना। तो सब लोग जमा करते हैं, एग्जाम्पल 5,000 जमा हो गए, सो दैट इज अ मूवी फंड। ऑन द डेट ऑफ द मूवी, ओके, 6,000 खर्चा होता है, ओके। डज एवरीबडी हैव टू वरी अबाउट 6,000? नो, 5,000 तो जमा है ना, तो 5,000 तो उधर से माइनस करो, वो पिटारे से निकालो। 1,000 जो एक्स्ट्रा है उसके लिए तुम मेंबर्स को बोलो, देखो 1,000 अभी, 5,000 तो चलो फिट हो गया, बट 1,000 अभी हमको खर्चा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आई रिपीट, तो फंड से जितना होता है, द पर्पस ऑफ द फंड इज दैट, वही तो है। जब खर्चा होगा तो डोंट गो टू बेग एंड बोरो, भीख मांगने के लिए यहां वहां पे मत जाना, फंड से निकालो। अगर कम हो गया फंड तो फिर आप जा सकते हो पूछने के लिए। हाँ, तो 40,000 हमने फंड से निकाला, 10,000 यहां पे लिख दिया। तो दैट इज द एक थोड़ा हट के पॉइंट टुडे, जब खर्चा ज्यादा होता है और फंड कम। नेक्स्ट, secretary's honorarium. It is a payment, it is an expense, so it comes on the expense side. So there it is, 30,000. Next, 8% investment, 1 lakh. आज इसमें कोई भी एसेट साइड पे there is no adjustment. क्यों? मैंने पूरा डायलॉग ऊपर लिखा है कि ये ना लास्ट डे पे किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, बिकॉज यू हैव डन द इन्वेस्टमेंट ऑन द लास्ट डे। इफ यू इवन डिड इट फॉर 1 month, you would have got interest for 1 month. Then comes cash and bank, तो let's write that in the closing balance sheet. एकदम ऊपर कैश 21,500 and एकदम ऊपर बैंक 45,000. I'm hoping that many of you who are watching on the mobile screen, okay, can find out कि भाई सर ने कहाँ पे changes किए, okay, because mobile screen is not that big, but ज़माना ऐसा है कि many of us spend a lot of time on a mobile device, तो I hope आपको नज़र आता है कि कहाँ पे सर ने क्या लिखा, okay. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने बना लिया, अभी एडजस्टमेंट्स करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये काफ़ी लंबी कहानी है। द क्लब हैड, क्लब में कितने लोग थे?
225, सब लोग अपनी जेब से कितना देना चाहिए? 500. ओके, एक मिनट, वर्किंग, अगर सब लोग पैसा देंगे टाइम पे, 225 into 500, how much should I get? 1,12,500. Everybody pays. But do you think everybody will pay on time? No. 225 people. इंसान परफेक्ट नहीं होता, इंसान गड़बड़ करता है. तो आई रिपीट, तो 1,12,500 आपको नहीं मिलेगा. तो कितना मिला आपको करंट ईयर के लिए? नॉट करंट ईयर में, करंट ईयर के लिए आपको कितना मिला? लुक एट द क्वेश्चन. 15-16 के लिए 12,500, 17-18 नेक्स्ट ईयर के लिए 10,000, करंट ईयर के लिए 1 लाख मिला. क्लियरली दिया है ऊपर, 1 लाख मिला आपको. ओके, बट देन यू शुड नो व्हाट, बट देन मिलना तो 1,12,500 था, 1,12,500. So I didn't get 1,12,500. I only got 1 lakh. So what to do? You remove that 1 lakh and then you will come to know the receivable for the current year. What is that? 12,500. We have done receivable for the current year in the previous questions and they had given it to us directly. सजा के दिया था. आज हमने ढूंढा. जब भी members आते हैं सम के अंदर, मेरी दरख्वास्त है, okay, that is a very polite language on my part. Always remember it is a hint at finding out receivable for the current year. How do you do it? कुछ इस तरह. So ये जो receivable है 12,500, this will go to your solution and if you above see the formula, R stands for receivable. तो उसके अंदर में लिख रहा हूँ receivable for current year 12,500. Okay, now hold on. अगर वो फॉर्मूला में अभी कंप्लीट करूँ, मीनिंग 122,500 plus minus, how much do I get? 1,12,500. Hold on, this is the answer, but receivable का second effect, A for asset. So receivable का second effect, whatever you write asset में, please notice subscription receivable current year का 12,500. वो जो फॉर्मूला है ना, कौन सा? RTNL, वो सभी चीजें RTNL का सेकेंड इफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल adjustments. Okay, so I hope that is understood. Today is the first lecture that we are doing RTNL. Okay, उसको if we use it 2-3 बार, कहते हैं ना कि भाई 2-3 बार काम करने के बाद ना आपका हाथ साफ होता है. साफ होता है मतलब कैसा नहीं कि भाई कीटाणु मुक्त नहीं होता, but you get better at that. You get better at using that particular thing. हाँ, तो ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन का. और क्या? Look at the question. Subscription outstanding as on 31st March 16 is 15,000. ये तो ओपनिंग है लास्ट ईयर का, वो हमने सॉल्व किया. पॉइंट 2, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग 2,000. हाँ, तो टेलीफोन बिल में चले जाओ and outstanding means plus, तो ऐड कर लेते हैं 2,000, तो you will get 37,000. Second effect, very simple, liability side, very simple. If it's simple then I'll not give you a very big story, ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है. 2,000. Okay, point 1 done, point 2 done, फिर obviously point 3 होगा. लॉकर रेंट का क्या? लास्ट ईयर का लॉकर रेंट इज 3,050. नाउ होल्ड ऑन, व्हाट अबाउट दैट लास्ट ईयर का? क्या वो आपको मिला नहीं? देखो मेरे पीछे लॉकर रेंट कितना है? 17,050. मीनिंग मेंबर्स से आपने 17,050 रुपया लिया. डोंट यू थिंक आप 3,000 की वसूली कर सकते हो अगर आप दम रखते हो? इफ यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग, वेल नॉट छीन नहीं रहे हैं फोर्सफुली नहीं, बट ऑफ कलेक्टिंग 17,000, तो 3,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो वी अज्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, पुराना हिसाब क्लियर, वी अज्यूम कि 17,000 में ना, ये जो है ना ऊपर 17,000, इसमें लास्ट ईयर का वो जो 3,050 है ना वो आ गया होगा. यस, एक यहाँ पे लिखो
So we received. And second, A, asset. तो if you go to the asset side, ऊपर है 3050, वो रिसीव. वी अज्यूम एवरीबडी अच्छा चीज हम अज्यूम करेगा, क्या हमको तो मिल गया. ओके तो 17,000 वी रिसीव, वी अज्यूम दैट लास्ट ईयर का सबसे पहले 3,000 मिल गया. ओके देन कहानी बाकी है अभी तक मेरे दोस्त, कहानी बाकी है. लुक अबाउट and 1500 for 1617. Many times it seems कि स्टीवन सर बस ऐसा हाथ घुमा रहे हैं, क्या करूँ अपना, कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे है मेरी कानून नहीं हो बट अपना भी लिमिटेशन है, ये स्क्रीन इतना ही है तो मैं सिर्फ ऐसे इशारा कर सकता हूँ. हाँ ओके तो फर्स्ट पॉइंट ऊपर कि करंट ईयर का लॉकर रेंट 1500 नहीं मिला. वेयर डू यू राइट दैट, है ना फॉर्मूला में जगह है, देखो ना रिसीवेबल फॉर करंट ईयर में 1500 हियर. फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट हियर सी ए एसेट. whatever you write in RTNL, आज 2 बार किया है. let's see next time I'll take up a question where I can repeat this once again. asset side ऊपर locker and receivable current year 1500. So subscription locker rent in this problem was लगभग same, okay, because they are both incomes. पुराना वाला clear हो गया, नया वाला पैदा हो गया. Next point, salary outstanding 4,000. So go to salary again, no need for drama for this. Salary में add करो. One thing that I missed out, if you see the answer for locker rent is here 15,500. okay, वो पहला हमने प्लस किया, फिर ये वाला हमने माइनस किया और ये आंसर आ गया 15,500. ये इनर कॉलम में आप जो भी करते हो ना, दैट डजंट गिव यू मार्क्स बिकॉज इट्स जस्ट रफ कैलकुलेशन. whatever you write in the outside, not whatever correct you write in the outside gives you marks. हाँ okay, so where was I, salary outstanding तो ऊपर दूर है 4,000 ना, तो आउटर कॉलम में 28,000. सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड. These are longer solutions. What is very important is your control. Okay, however big a scooter, a bike or a vehicle a driver drives, what is very important, control. You should not lose control. Okay, if you lose control, वो एक जगह पे नहीं, वो 2-3 गाड़ी को ठोक के जाएगी. तो it's not 1 marks, it results in you missing out a lot of marks. Next question, point 3 done, 4 done. 5 ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो लिखा. क्लोजिंग स्टॉक लिखना है. हाउ मच इज इट, 3,000. सो इफ यू रीड अबाउट पॉइंट नंबर 5, क्लोजिंग स्टॉक इज 3,000. सो पहले तो वो फॉर्मूला है, आई होप यू कैन सी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस 3,000. 15 माइनस 3 तो आउटर कॉलम में 12, दैट इज कंज्यूम, यूज्ड. ओके, क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आएगा. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आएगा किधर, एसेट साइड. ओपनिंग स्टॉक ये इधर था ना, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग इन क्लोजिंग बैलेंस शीट 3,000. ओके, मूविंग ऑन. after even though I will do my best, the lecture is almost nearing 1 hour, which is quite long, but I don't see how can I make it smaller. जहाँ पे explanation था वो explanation तो देना ही देना था. अगर नहीं दूंगा then this lecture or rather any lecture wouldn't make any sense. Point number 6, on 1st April 2016 वो ओपनिंग था फर्नीचर का, बिल्डिंग का, स्पोर्ट्स फंड का, हमने लिखा. पॉइंट नंबर 7 डेप्रीसिएशन. चलो भाई फर्नीचर पे थोड़ा ऑड है, 12.5%. ओके, तो लेट मी गो टू फर्नीचर एंड 12.5%, तो 92,000 विच इज द बैलेंस, कहा ना रिड्यूसिंग बैलेंस. हाँ, उसका 12.5 अपॉन 100,
whenever you do that through your wonderful techniques, 11,500 आपको depreciation आएगा, outer column 80,500. 11,500 का second effect will go to the expenditure side. तो यहाँ पे आया depreciation on furniture 11,500. Almost same percentage, थोड़ा अलग, building पे 5%. तो चलिए भाई बिल्डिंग की तलाश में, यही पे ऊपर है, उसका 5% आप कर लो, 6,50,000 का 32,500. आउटर कॉलम में 6,17,000 17,500. Second effect of this depreciation above goes to the expenditure side. Every depreciation goes to the expenditure side. It is a non-cash item. Depreciation on building 32,500. Please do that. After that, I can say I am done with all the adjustments. Final totaling, casting, tally remains. Income, आज तक तो यही heavy है. Even in this problem, 2,81,950 and 2,81,950. As in when you properly deduct all the expenses, आपको surplus आ जाएगा 25,450. Excess of income over expenditure, ये मालिकों का surplus है, मतलब all the members. तो कैपिटल फंड जो सारे मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है ये उसमें ऐड होगा, तो सरप्लस प्लस हो जाता है कैपिटल फंड में. So the total capital fund is 8,68,000. Then सर दुआ तो हमेशा करना, दुआ प्रेयर, बट अगर आपने मेहनत की है, ये बराबर से यूज़ किया है, दोनों टोटल सेम आना चाहिए. सो द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी इज 8,84,000 and also of the asset. You can always pause, you can find out your total and then match it with me being unpaused. Okay, so that is a very typical full question that can come in not-for-profit organization. Don't worry, ये बिल्कुल complete नहीं हुआ है. We have got a lot more variety remaining in upcoming lectures. Little by little, I will reach to that variety also. Okay, so let me change my scene, and before we are done for today, very quickly remind you that the PDF of the question and of the answer is going to be available in the description below. If you have understood this way of training you with the help of certain bit formulas here and there of RTNL, ALLA, I would highly appreciate it if you will like this particular lecture, and very importantly, if you will share this lecture with your friends, with your classmates, with your society वालास जिन लोग आपके लेवल में है पढ़ाई के लिए. ओके, हाँ, अगर कोई डाउट्स रहेगी, if you have any doubts, if there was a certain point in which I have gone a little bit faster in the explanation, you can always leave a comment in the comment box. Okay, that is it for me. This is Steven sir. This is a goodbye from me. अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सबका ख्याल रखना. Till the time we meet again, good day to all of you. God bless. Take care.